5 साल पहले वडोदरा को हम जॉब सिटी के तौर पे कंसिडर करते थे। जस्ट स्टार्टअप एवरीवेयर एक बज़वर्ड हो गया है, एक ट्रेंड हो गई है। और मुझे नहीं पता था कि स्टार्टअप किस चिड़िया का नाम होता है। तेज नहीं भागना है, धीरे धीरे भागो, लेकिन सबको साथ में लेके जाओ। किसी कंपनी को एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए कितना मेहनत लगता है, और वो टायर 2 टायर 3 जिससे बिलोंग करता है ना, उनको स्केल अप करना और एक्सपेरिमेंट करना बहुत ईजी होगा। कोविड के बाद एक मैं बोल सकता हूँ कि मधुमक्खी के जैसे ज़्यादा होता है, वैसे ही एडटेक स्टार्टअप बूम करने लगे। गैलरी चालू किया, मैंने स्टार्टअप चालू किया, या मैंने एक अच्छा सा वेडिंग फोटोग्राफी चालू किया तो मैंने स्टार्टअप चालू किया। और इसीलिए इन्वेस्टर्स आपके रिस्क वाली कंपनी में पैसा लगाने के लिए अच्छा खासा इक्विटी चार्ज करते हैं। पीपल लाइक स्टार्टअप इज नॉट जस्ट लाइक अ सिंड्रोम। थोड़ा आपने जो थोड़ा बोला, थोड़ा मुझे ऑफेंसिव लग रहा है। To all of you who are watching this episode of Talks at Prinkit.in, we assure you that you will get lot of inspiration and insights revolving around the world of startups. Every day at the office of Prinkit.in, many inspirational figures come from various walks of life, and we thought, why to keep that inspiration only inside our office? Why not to let them go out, flourish and reach to thousands of people in Vadodara? One such person who is sitting with us today is Mr. Nikhil Suthar. Let me tell you guys, Nikhil Suthar is the name which can be said as the best name when it comes to startups, not only in Vadodara but Gujarat. And when it comes to India, the name is increasing slowly and gradually. But the way he has established his niche in Gujarat, we all the Barodians are sure he will definitely give his mentoring ideas to many other startups in the whole of India as well. Nikhil bhai, welcome, and we are glad you accepted our invitation for the very first episode of Talks at Prinkit.in. Thank you very much. Thank you very much for inviting me for this show. Because these are the times of Corona, let me do namaste to Nikhil bhai. Namaste, namaste. Let me tell you, Nikhil Suthar is a name synonymous with startup. When you hear this, what are the emotions behind this? So, because let me convey this message in Hindi, so I can convey it to all the audience, those who are listening today. So, startup जब साया जी स्टार्टअप किया था, या उससे पहले की जब ये जर्नी है, व्हाट डू आई बिलीव कि जब हम कॉन्स्टेंटली एक मैसेज को बार बार रिपीट करते हैं, पीपल बिलीव कि यू आर वर्किंग अपॉन समथिंग। सो शायद 5-6 साल हो गए मुझे इस इकोसिस्टम में, तो शायद कहीं ना कहीं ये लोग रिलेट करते हैं कि निखिल सुथार बिलोंग्स फ्रॉम स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो दैट्स वाई व्हाट आई फील कि यस आई हैव डन समथिंग, या शायद किसी के लाइफ में कहीं तक ऐसा बात मैसेज पहुंचा है कि आई एम वर्किंग अपॉन समथिंग। सो दिस इज़ व्हाट आई फील। सो नथिंग ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम, लेकिन वॉट एवर जो हमने मिलके सब बड़ौदा इकोसिस्टम में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, और वो शायद कहीं ना कहीं नाम से जुड़ गया है। If you listen to his answer, what he mentioned is हमने मिलके. This is his kindness and humbleness, that he believes that it is the teamwork behind his success which has helped him to reach today where he is. Let us start the main episode of today. We have heard from some of the people that he is best at remembering lyrics of the songs. He also likes to write. We will try at the end of the episode to make him sing something. But before that, the first question is, Mr. Nikhil, आप बिजी बहुत रहते हो, और जब इंसान बिजी रहता है तो वो कई बार कंटाल जाता है, उनको समझ नहीं आता कि अब वो कौन सा एक्शन ले, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो. सो फ्रॉम ऑल दिस बिजी शेड्यूल, हाउ डू यू मैनेज टू remain intact with following those schedules and making everyone around you feel good that okay, Nikhil bhai has given me time? So actually I try to be a positive by reading the books and the music, of course, but I do have a few good friends with me.
So whenever I feel depressed or I feel that I need to discuss something with someone, so I approach my close friends कि यार थोड़ा आज बाहर जाता है, आज मूड डिप्रेस है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ के शायद वो बातें भी डिस्कस करने से बहुत बार ऐसा होता है कि या आज का स्ट्रेस निकल गया। बिकॉज वैन यू आर वर्किंग विद द स्टार्टअप्स ना, व्हाट हैपन्स कि हर एक स्टार्टअप का अपना खुद का प्रॉब्लम वो Yes. डिस्कस करने हमारे पास आता है। सो व्हेन यू आर हियरिंग अबाउट 15-20 प्रॉब्लम्स ऑन अ डेली बेसिस, तो आपके भी प्रॉब्लम होते हैं, आपके ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, एजुकेशनल बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो कभी कभी ये डिप्रेशन होता है, बट म्यूज़िक, फ्रेंड्स और शायद इस कम्युनिटी में जो मेरे सीनियर्स हैं उनका कहीं ना कहीं गाइडेंस जी, हेल्प्स मी अलॉट। ऐसा भी कई कह सकते हैं हम कि आप स्टार्टअप एनेबलर तो है, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी है। सो प्रॉब्लम सॉल्वर, यस, प्रॉब्लम सॉल्वर अप्रोच ही रखना चाहिए, व्हाट डू आई बिलीव। बिकॉज क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये एक हर बार जब प्रॉब्लम आता है और हम प्रॉब्लम से डरने के बजाय इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, शायद ये आपके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक बहुत जल्दी पहुंचाने का रास्ता है। रादर यू फील डिप्रेस और शायद फ्रस्ट्रेट होके शायद हम कुछ और स्टेप ले। सो व्हाट आई फील कि हमें हर बार हर किसी एंगल में, सो वेदर लेट्स से हम दो फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, तो वी डिस्कस नॉट ओनली जस्ट अबाउट द प्रॉब्लम्स, लेकिन Yes. क्या हो सकता है इस डायरेक्शन में, तो वो भी कहीं ना कहीं दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। Nikhil bhai, one fact which was mentioned in the Times of India in January's edition of this year, that is 2020, in the whole of India, जितने भी फंडेड स्टार्टअप्स है उसमें से सबसे ज़्यादा 43% of the funded startups came from Ahmedabad city. Then what is Nikhil Sudhar doing in Vadodara? Okay, so exact question, to the point. So yes, when I was in Ahmedabad, I had done my engineering there. So अहमदाबाद इकोसिस्टम शायद 2008-9 से अच्छा काम कर रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, कंटिन्यूस उन्होंने एफर्ट डाले। सो आफ्टर 8-10 years now, Yes. Ahmedabad ecosystem is producing a very good number of startups. Yes, Vadodara ecosystem, एक what I believe, Vadodara was earlier, let's say if we discuss about 5 years back, 5 साल पहले वडोदरा को हम जॉब सिटी के तौर पे कंसिडर करते थे। लेट्स से जी। सारे जितने भी एमएनसीज या मल्टीनेशनल्स हैं वो वडोदरा को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते थे। Yes. सो यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनका माइंडसेट जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा है, Okay. ना कि बिजनेस ओरिएंटेड। तो अब ये धीरे 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 चेंज हो रहा है। 15-16 से थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होना स्टार्ट हुआ है, एंड आई कैन अश्योर यू कि 18 के बाद जो रैपिडली हमने काम करना स्टार्ट किया इकोसिस्टम पे, शायद अगले 4-5 साल में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द करेंट द पोजीशन ऑफ वडोदरा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग Okay. हब ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप। सो या आपने जो सच बोला वो शायद आधा है। यस, अहमदाबाद इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप हब, बट वडोदरा भी इतना पीछे भी नहीं है। शायद हम बहुत इमर्जिंग वे में आगे बढ़ रहे हैं इसमें। There is this startup everywhere. एक बज़वर्ड हो गया है, एक ट्रेंड हो गई है। स्पेशली किसी भी हम यूथ से बात करें, और आजकल तो इवन स्टूडेंट्स हु आर मे बी इन स्कूल, आई कैन से व्हाट डू यू वांट टू डू, स्टार्टअप, व्हाट आर यू डूइंग, स्टार्टअप। सो दिस इज रियली बिकमिंग टू मच. Why is this happening, and do you think that this startup will only remain a trend? How to see this whole scenario? सो स्टार्टअप एक टर्मिनोलॉजी है, शायद मुझे भी नहीं पता थी जब मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में कनेक्ट हुआ। बिफोर 2012 मैं एक बिजनेस कर रहा था, एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था, Okay. और मुझे नहीं पता था कि स्टार्टअप किस चिड़िया का नाम होता है। बट जब आई वेंट टू अहमदाबाद, लोगों से मिलना स्टार्ट हुआ, इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ, देन आई गॉट टू प्रॉब्लम एक आइडिया दैट लेट्स से अगर आप कुछ ऐसा करें, इफ़ यू आर सॉल्विंग सम बर्निंग प्रॉब्लम, वेदर द प्रॉब्लम इज स्मॉल और बिग, छोटी से छोटी प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने में काम कर रहे हो। Can you give some example of this? चलिए, Any type of problem? ऑफ कोर्स अगर आप ओयो रूम की बात करें, Okay. शायद
होटल पहली बार ओयो ने नहीं बनाया, होटल्स पहले से है। जी। लेकिन क्या बर्निंग प्रॉब्लम था कि जब हम छुट्टी के टाइम पे हिल स्टेशन पे जाते थे, हाँ। होता ये था कि सारे होटल्स बुक थे। हाँ। फिर वो अपनी मनमानी रख के अपना प्राइसिंग चार्ज करते थे। यस। अब होता ये है कि ओयो रूम के थ्रू आप कहीं पे जाने से पहले ही प्राइस कंपेयर कर लेते हो, आपको बुकिंग के लिए उस टाइम पे जाना नहीं पड़ रहा है। आप कौन से रूम में कौन सी फैसिलिटी है, कौन से होटल में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, पहले ही चेक कर लेते हो। सो एक छोटा सा प्रॉब्लम कि आपको राइट टाइम पे राइट बुकिंग ना मिलना, या आपको ट्रस्टेड सर्विस ना मिलना, वो प्रॉब्लम सॉल्व किया ओयो ने। और ओयो ने एक इंटरफेस लेके आया। जैसे आप उबर की बात करें, उबर के पास खुद का एक भी टैक्सी ना होते हुए उबर दुनिया का सबसे बड़ा टैक्सी प्रोवाइडर कंपनी है। तो कैसे उन्होंने जस्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है और सॉल्यूशन। अभी होता क्या है चिन्मय कि जैसे ये 2-4 कंपनी सक्सेसफुल हो गई ना, लोग हाइपोथेटिकली प्रॉब्लम बनाना भी स्टार्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि सर आई हैव आइडिया और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर मुझे ये प्रॉब्लम फेस होता है तो अब मैं इस पे काम करूँगा। सो इट इज अ सेल्फ सेंटर्ड। तो आपको लगता है उससे कभी भी स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कितने लोगों को लगता है, सर्वे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि चिन्मय को लगता है, मुझे लगता है, प्रिंकित को लगता है, दीपेश को लगता है। तो हमें सबको, यानी कितने % ऑडियंस है, कितना मास है, कितना, तो वो क्लासीफाई करके वेदर दे आर गोइंग टू पे फॉर इट और नॉट। कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम तो है, कैब एक्स्ट्रा पे करना चाहेगा। हाँ। अब उधर खड्डे वाले रोड है तो गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिए, लेकिन आपको टोल भी पे नहीं करना है। दिस व्हाट द एग्जैक्ट सिनेरियो इज। सो प्रॉब्लम होना, उस प्रॉब्लम के टेक्नोलॉजिकल वे में सॉल्यूशन देना, दिस इज व्हाट यू कैन कॉल इट स्टार्टअप। लेकिन होता ये है कि ट्रेंड की जो बात है, यस, मैंने भी ये बहुत सारे चीज़ें एक्सपीरियंस की है। अच्छा। व्हेन समवन स्टार्टिंग द न्यू रेस्टोरेंट और न्यू शॉप, they call it themselves as I have started today. So ऐसा नहीं होता, उसको बिजनेस बोलते हैं। तो यस, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर का जो डिफरेंस है ना कहीं वो समझने की ज़रूरत है। चले तो हम ये क्वेश्चन को भी हम लेते हैं बाद में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल बिजनेसमैन एंड अ स्टार्टअप पर्सन। एज ऑफ नाउ, according to you, because you deal on a daily basis with hundreds and thousands of people, with startup aspirants, enthusiasts, what is the mindset of Barodians when it comes to startup? सबसे पहले चैलेंज what I feel during the initial days, लोगों को लगता है स्टार्टअप इज समथिंग दैट मल्टीप्लाइज द मनी, और शायद ऐसा लगता है कि स्टार्टअप इज समथिंग जहाँ से कुछ एकदम से लाइफ चेंज हो जाएगी, रातों रात लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं था। या वो हमने ऐड देखी थी, पहले मैं बहुत मोटा था फिर पतला हो गया। सो ऐसे ये नहीं होता है। सो एक तो माइंडसेट चेंज करना। सेकंड थिंग क्या है कि हमारे पास इंटरनेट तो है शायद, लेकिन इंटरनेट का सही उपयोग हमें नहीं आता है। शायद आधी चीज़ें आप तक पहुँच ही नहीं रही है। तो इन्फॉर्मेशन को राइट लोगों तक, एंड यूज़र तक पहुँचाना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और लोगों को अभी भी वो प्रॉब्लम है। जैसे अगर बात करें, देयर इज़ अ पॉलिसी कॉल्ड स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। अब ये पॉलिसी शायद वडोदरा में लाखों लोग इसको अप्लाई कर सकते, लाखों बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन शायद उनको पता ही नहीं है कि ये पॉलिसी है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी, लेट्स से मुझे एक एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है जो बर्निंग इशू है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हो कहीं ना कहीं ऑन अ डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल वे, गवर्नमेंट आपको उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप टू 2.25 लाख रुपीस तक का ग्रांट मिलता है। ग्रांट यानी पैसा वापस नहीं करना होता है। अब क्यों लोगों ने नहीं लिया इसका बेनिफिट, या क्यों इतने कम लोग बेनिफिट ले रहे हैं? बिकॉज लोगों तक ये मैसेज पहुंचा ही नहीं है। अब होता क्या है, जैसे आपने किसी भी बड़े एग्जाम्पल या हम पकड़ दे, जैसे या बिल गेट्स ने जब भी एक्सपेरिमेंट किया होगा या ग्रेहम बेल ने जब किया होगा, तो शायद आपने ये सब स्टोरी सुनी होगी कि उन्होंने घर बार सब कुछ लुटा दिया था अपना। हाँ। यानी वो उनके पास उतने भी पैसे नहीं थे और सारा पैसा वो रिसर्च में लगाते थे। आज गवर्नमेंट प्रोएक्टिव वे में अपना रोल लिए हुए है, और कोई भी स्टूडेंट कुछ करना चाहता है, कोई भी प्रोफेशनल कुछ करना चाहता है गुजरात में या इंडिया में, तो गवर्नमेंट उसका हाथ पकड़ने को तैयार है कि बेटा कुछ करना चाहते हो, ये लो सीड मनी और स्टार्ट समथिंग
वर्किंग का अगर ये फेल भी होता क्या है सर, सरकार से 2 लाख रुपए लिया तो वापस भी करना पड़ेगा। हाँ, ये ग्रांट है। सो गवर्नमेंट बोल रही है इफ योर आइडिया फेल्स तब भी ये पैसा वापस नहीं करना है। सो अगर ये आपका पैसा है, ये इट मीन्स गवर्नमेंट उसको एक पैनल के थ्रू स्क्रूटिनाइज करता है, Fine. उसका वैलिडिटी चेक करता है कि भाई आप जो प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम है भी नहीं, हाँ, और सेकंड थिंग की प्रॉब्लम है तो जो आप अप्रोच प्रपोज कर रहे हो कि ऐसे मैं कुछ बनाना चाहता हूँ तो टेक्निकली या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ये दोनों एस्पेक्ट पे काम करके और कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, ये सारी चीज़ों पे काम करके गवर्नमेंट आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देती है, ये फाइनेंशियल हेल्प भी देती है। सो ये जो जैसे मैंने बताया SSIB पॉलिसी है, देयर इज अनदर पॉलिसी कॉल्ड स्टार्टअप गुजरात पॉलिसी। अंडर Okay. दिस पॉलिसी यू कैन गेट अप टू 30 लाख रुपीज ग्रांट। इट्स अ ग्रांट। and that to 30 lakhs. 30 lakh rupees a grant. So it means up to 30 lakh rupees you can ask the fund Yes. for the marketing Okay. of your brand, for marketing, promotional, the strategies, for development of your product. So अगर प्रोडक्ट डेवलप करना है, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, या इफ योर प्रोडक्ट इज नॉवेल, यूनिक एंड इनोवेटिव, सरकार उस प्रोडक्ट को स्टार्टअप गुजरात के स्कीम के तहत 30 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल एड देते हैं। अब ये तो रहा फाइनेंस। किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर शायद पैसा ही सब कुछ रोल प्ले करता ना तो आज शायद बहुत सारे लोग बहुत कुछ बना दिए होते। तो पैसे से सबसे पहले क्या चाहिए, द राइट प्रॉब्लम Okay. दैट यू सॉल्व। Fine. तो उसके बाद चाहिए राइट टाइप ऑफ मेंटरिंग। आपको हाथ पकड़ने वाला एक इंसान चाहिए, गाइड। जैसे स्कूल में आपको एक मेंटर मिला था तो आपने सीखा कि ABCD कैसे बोला जाता Yes. है, तो वैसे ही कॉलेज में आपको टेक्निकलिटी सिखाई होगी कि लाप्लास का कैसे मैथमेटिक्स पे कैसे काम करना है। सेम थिंग आपको स्टार्टअप में कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी नया बिजनेस चालू करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो उस Okay. मार्केट को समझने के लिए, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए और उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को समझने के लिए आपको कोई मेंटरिंग की Mentor ज़रूरत है। चाहिए। थर्ड है फाइनेंस। द Okay. फोर्थ है टीम। अगर आपके पास अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा मेंटर है, पैसा भी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए राइट टीम नहीं है तो कैसे चलेगा। तो ये 4-5 जो चीज़ें हैं, अगर आपके पास मेंटरिंग नहीं होगा या गाइडेंस नहीं होगा, पैसा नहीं होगा राइट टाइम पे, या अच्छी टीम नहीं होगी, आप कैसे प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में जाओगे। तो मेरे हिसाब से ये चारों चीज़ें ज़रूरी है और वहाँ पे ही हम अपना रोल प्ले करते हैं। Okay. So if anyone is looking around this kind of support system, we offer these things Okay. on a complimentary basis. Fine. So we are not charging anything, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जो वो हम उन तक पहुंचाते हैं एज अ इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर और एज अ कम्युनिटी। वी कनेक्ट देम with the other stakeholders. We fund them under the any policy guidance. तो ये जो गाइडलाइंस है पॉलिसी की या जो कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट एनी ऑफ द लोकल स्टार्टअप। Okay. और आई एम वेरी मच हैप्पी टू शेयर वन डिजिट दैट about 180 plus startups are working in Vadodara right now. 180 plus startups. This is a very big, a huge number. कि 180 से ज़्यादा स्टार्टअप्स वडोदरा में काम That कर is रहे हैं definitely और huge. उसमें से बहुत सारे सक्सेसफुल कंपनीज में कन्वर्ट भी हो गए हैं। बहुत Okay. सारे ऐसे जो करोड़ों में रेवेन्यूज कमा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हमने एक दिशा पकड़ ली है। हाँ, अब इस दिशा को पकड़ के उस डायरेक्शन में एक्सपोनेंशियल ग्रो करने का काम हम सबको मिलके करना पड़ेगा। Yes. ना सरकार अकेली कुछ कर पाएगी, ना मैं अकेला कुछ कर पाऊंगा, ना आप कुछ कर पाओगे। हम सब जब मिलके काम करेंगे तो शायद वी कैन इमर्ज एज वन ऑफ द स्टार्टअप सिटी इन द कंट्री। having so many startups, how does, and you head Vadodara Startup Studio. So being the head of this, being the CEO, how do you manage this many startups at a time? So yes, this is a very tough challenge because when you are having about 55 plus startups incubated with you, so what happens on any single time, anyone let's say कोई भी कॉल करता है वो बोलता है निखिल भाई I am having the doubt on the how to perform the due diligence. At the same time you are getting the call from regarding the marketing. So now we are having a complete funnel, a complete mechanism framework where let's say if you are approaching with any of the queries, so we are having dedicated team and the mentor. So we are directly linking, we are first understand the problem,
आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम वी कनेक्ट देम विद द राइट काइंड ऑफ मेंटर, तो जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है। और वी इंश्योर करते हैं कि हम ये कि कहीं ना कहीं जो गाइडेंस मिला है वो स्टार्टअप को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ स्टार्टअप फील्स कि उसको सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है, तो हमारे पास वी हैव अ पूल ऑफ मेंटर्स, सो वी आर Okay. हैविंग अबाउट 55 प्लस मेंटर्स राइट नाउ फ्रॉम पैन इंडिया। बैंगलोर से है, मुंबई से है, पुणे से है, इवन सिलिकॉन वैली से है। सो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी स्टार्टअप्स को गाइड करने अभी आपने सिलिकॉन वैली का नाम लिया, में। या वी ऑफन से कि बेंगलोर का सिलिकॉन वैली, सो इज इट दैट यूजुअली वी कॉपी समथिंग फ्रॉम व्हाट इज समथिंग सक्सेसफुल आउटसाइड इंडिया, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नेमिंग बट मे बी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अप्रोच फॉर एनी पर्टिकुलर वर्क? थोड़ा उसको थोड़ा आपने जो थोड़ा बोला थोड़ा मुझे ऑफेंसिव लग रहा है। सो वी आर नॉट कॉपिंग द कल्चर ऑफ वेस्ट, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल्स। लेट्स से जब हम कभी रिलीजियस अगर स्पिरिचुअल आपको भावना की बात आएगी तो क्या आएगा, इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे शायद एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, Yes. तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। इन अ वे बहुत अच्छा काम एक टाइम पे हुआ है सिलिकॉन वैली पे। सिलिकॉन वैली हब बन चुका है जितने भी ग्लोबल बड़े कंपनीज है उसका। सो अब सिलिकॉन वैली का जो कल्चर है वो कल्चर कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि वो जैसा हुआ वैसा कुछ हम इंडिया में करना चाहते हैं। लेकिन हमारा जियोग्राफिकल एरिया भी अलग है, हमारा डेमोग्राफी अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है, तो उसका करने का तरीका भी अलग होगा। सो वी आर नॉट कॉपिंग द दैट थिंग, बट हाँ जो रिवोल्यूशन या जिस हिसाब से वो एक दौर पे उभरा, वो उभरने की शुरुआत इंडिया में होने की शुरुआत हो चुकी है। और बेंगलोर इज़ वन ऑफ द हब, हैदराबाद इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हब जहाँ पे स्टार्टअप के सेगमेंट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। Okay. My apologies for misunderstanding this word, and thank Yeah. you for making me and maybe to few others to change this perception. How many of you know the struggle story of Mr. Nikhil Suthar? We have come to know that there was one time when you were about to open a computer lab or something related to that. And there were also the times when Nikhil Suthar went to teach the children in rural areas. What were the times of Ahmedabad, this computer lab thing, and then reaching to Vadodara and working at this position? शुरुआत से ही चिन्मयी एक माइंडसेट रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या किसी चीज़ का प्रॉब्लम कैसे निकाल, सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, प्रॉब्लम तो हर जगह पे है। तो जब बिकॉज मेरे फादर जब मैं स्कूल में था तब उनका इंतकाल हो चुका था व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। सो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस से हम गुजर रहे थे एज अ फैमिली। सो उस टाइम से ही हमने डिसाइड कर दिया था कि मुझे अपने स्किल सेट डेवलप करने पड़ेंगे। अगर स्किल सेट डेवलप नहीं होगा तो शायद कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिलने में इशू होगा। तो स्किल सेट डेवलप करते गए। व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड पैरेलली मैंने हार्डवेयर इंजीनियरिंग का एक कोर्स मैंने कहीं से किया, तो हाउ टू असेंबल द कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग एंड ऑल दिस थिंग। सो वो सीखने के बाद क्या हुआ कि मुझे साइड पर ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गया कि कंप्यूटर असेंबल करके आए, आई एम गेटिंग $500। किसी का कंप्यूटर रिपेयर करके आए, शायद फैन नहीं चल रहा है या ब्लोअर मारने की ज़रूरत है, एंड आई एम गेटिंग $100। सो वो फॉर्मेटिंग वाला जो ज़माना था कंप्यूटर फॉर्मेट करने के लिए, सो आई स्टार्टेड माई जर्नी एज आई कैन से कंप्यूटर टेक्नीशियन। और मैंने पहला ही मेरा जो कंपनी था वो उस दौर में इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए चालू किया था। देन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मेरे क्लाइंट ही मुझे बताने लगे कि जो एक्चुअली मेरे घर पे कंप्यूटर है, आप रिपेयर करके आते हो। मेरा बेटा 5वीं स्टैंडर्ड में पढ़ता है और तब ये एक शुरुआत हुई थी कंप्यूटर के एक रिवोल्यूशन की। सो मेरा बेटा 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, क्या आप उसको कंप्यूटर सिखाओगे? मैंने बोला हाँ, कितना दोगे? तो बोले आप सर आप बताइए। सो उस टाइम पे कुछ 3,000 रुपये मिले थे। अच्छा। सो 2-3 महीने पढ़ाना था बच्चे को और 3,000 रुपये मिलने वाले थे। तो 1-2 बच्चे को पढ़ाया, फिर मुझे लगा कि हाँ शायद ये थोड़ा रिस्पेक्टफुल जॉब ज़्यादा है कि मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ में पढ़ा भी रहा हूँ। लेकिन पढ़ाने में क्या है कि रिस्पेक्ट मिलता है या, और कंप्यूटर रिपेयर करने जाता हो तो एज अ टेक्नीशियन आपको कहीं ना कहीं ट्रीट किया जाता है। सो पैरेलली कंप्यूटर रिपेयरिंग के साथ साथ पढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये पैशन बना एंड देन वी स्टार्टेड अ कंप्यूटर टैलेंट। सो कंप्यूटर टैलेंट में व्हाट वी डिड कि हमने एक ऐसा मुहिम स्टार्ट किया
कि जो भी जैसे मकरपुरा जीआईडीसी की बात करें, सो बहुत सारे पुराने जीआईडीसी ऐसे हैं जहाँ पे अब अभी भी वो लोग हैं जो 8वीं पास है या 8वीं फेल हाँ। है और जो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो उस दौर में कंप्यूटेशन हो रहा था पूरा, कंप्यूटर नया नया मार्केट में आया था, तो उनको समझना ज़रूरी था टैली कैसे ऑपरेट होता है, हाउ टू राइट अ मेल। तो उनको अपग्रेड करने का बहुत बड़ा चांस था। तो हमने क्या किया, हमने वो सर्विसेज देना स्टार्ट किया कि हम पर्सनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया कि आपके ऑफिस में हम आएंगे, आपके कंप्यूटर में आपको सिखाएगा हाउ टू ऑपरेट द जीमेल, हाउ टू ऑपरेट टैली। सो हमने ये सब स्टार्ट किया और वहाँ से जो पैसा हम अर्न करते थे उसका हम अपनी ज़रूरियात का पैसा निकाल के जो बाकी का पैसा बचता है वो पैसे से हम सरकारी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो कंप्यूटर टैलेंट जो आइडिया था वो बहुत अच्छे स्केल पे हमने उसको आगे बढ़ा पाए। अहमदाबाद से, नडियाद से, आनंद से करीब 200 लोगों की टीम कंप्यूटर टैलेंट में बनी थी जो इसी चीज़ को आगे फैला रही थी। और फिर लेटर ऑन आफ्टर द गेटिंग द रिकॉग्निशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, हमें बाइसेक जो शायद आपको पता होगा स्कूल्स के अंदर आजकल टीवी पे पढ़ाते हैं, तो उस टीवी के थ्रू भी हमें ये मैसेज पहुंचाने का, ये लर्निंग्स पहुंचाने का मौका मिला। So you said that you were having team members of 200 people. Yeah, when I was studying in the my engineering. What were those few learnings, if you can share, which are helping you even today? Yes, of course. So when I was in engineering, तो जब छोटी एज में बहुत कुछ मिल जाता है तब यानी वो फियर भी होता है कि शायद बहुत जल्दी ये चला ना जाए। हाँ। और कभी कभी क्या होता है कि वो जो गलती आप कर बैठते हो ना अर्ली स्टेज में, ये पूरे लाइफ टाइम सिखाती है। तो उस टाइम में बहुत सारी मिस्टेक्स की होती है कि शायद जिस सिटी में आपको लगता है कि अभी इतना स्केल अप नहीं करना चाहिए, और आप उसी सिटी में आपने 50 वॉलंटियर्स को खड़ा कर दिया या 50 लोगों की टीम बना दी। होता क्या है, सिटी का मार्केट ग्रो भी नहीं हुआ है। हाँ। आपने 50 लोगों का टीम लगा दिया है। Yes. अब होगा ये कि वो मार्केट भी नहीं है, 50 लोगों का टीम ही है, अब वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे यूज़र बेस को, और अल्टीमेटली आपका ओवरऑल ब्रांड नेम खराब होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अर्ली स्टेज में सीख ली और बहुत कुछ नुकसान भी हुआ, अच्छा खासा नुकसान हुआ, बहुत बार सीखा। और उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट करते 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 कब स्केल अप करना है, कैसे स्केल अप करना है, कैसे लोगों को लेना है, व्हाट द थिंग जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हमने सीखी। And when did this love for writing poetic lines evolved? So actually मेरे पापा बड़ौदा से बिलोंग करते हैं और पापा मेरे पहले से ही एक उनका शौक़ था कि हम जनरली जब मैं छोटे थे तो हमें गांधीनगर ग्रुप बड़ौदा में एक छोटा सा एक थिएटर है। हाँ। तो वहाँ पे जब भी कुछ ऐसा ड्रामा या कुछ परफॉर्म होता था तो हम जनरली जाते थे। Okay. और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुशायरे भी होते थे या कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन होते थे। तो तब ये देखा था, पढ़ा था, और पापा का एक शौक़ था जब भी किसी टीवी पे ये कुछ पोएट्री का प्रोग्राम चल रहा था तो वो देखते थे। तो कहीं ना कहीं तब से एक था कि यार ये अच्छा है। और फिर वो थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, तो जब भी लगता है कि ये कहीं पे ये चीज़ बोल नहीं सकता। हाँ। या ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो जाहिर नहीं करनी है या लोगों तक अभी नहीं लिखना है, तो उस टाइम पे मैं डायरी में वो लिख देता हूँ। और कहीं ना कहीं बाद में जब लगता है कि ये मुझे आउट करना है तो फिर उसको पब्लिक पे ही करता हूँ। ऐसी कोई बात है जो अभी तक आपने एक्सप्रेस नहीं किया लेकिन अब करना चाहोगे? नहीं, ऐसा एक्चुअली जब भी मुझे लगता है व्हाट आई फील चिन्मय, कि जब भी ऐसा लगता है कि अब कुछ बातें पर्सनल होती है। हाँ। तो वो हम लिख देते हैं, फिर उस लिखने के बाद एक टाइम आता भी है तो जब हम उसको एक्सप्रेस भी कर देते हैं। जी। वन ऑफ योर वेरी क्लोज्ड फ्रेंड्स हैज सेड दैट यू आर लाइक अ टॉर्टोइस। क्या आप इसके ऊपर से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बताया होगा? ओके, सो यस, ये मैं बिलीव भी करता हूँ और ये एग्जांपल मैं बार बार देता भी रहता हूँ मेरे फ्रेंड्स को कि तेज नहीं भागना है। ओके। धीरे धीरे भागो लेकिन सबको साथ में लेके जाओ। बिकॉज क्या है कि आपको अगर बहुत जल्दी आगे बढ़ना है तो आपको अकेले भागना पड़ेगा। हाँ। और अब जब आपको पूरे कारवां को लेके एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ना है, एक बड़ी मूवमेंट की ओर आगे बढ़ना है, तो सबको साथ में लेके चलना है।
सो इसीलिए वो ये अप्रोच मेरा रहा है कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता पूरी चीज़ को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके, तब तक मैं शायद किसी चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ता हूँ। और इसीलिए स्लोली परफॉर्म करो, लेकिन शायद जो चीज़ करो वो एक्यूरेट करो, दैट व्हाट आई बिलीव। ओके। और जी उन्होंने भी यही बताया था कि ही इज स्लो एंड फोकस्ड एंड दैट इज व्हाई ही सेड डिस्क्राइब्ड यू विथ टॉर्टोइस। थैंक यू। सो वो शायद जो भी हो गया, मैं आफ्टर डिस्कशन में पक्का जानना चाहूँगा कि वो कौन है, लेकिन थैंक यू फॉर दैट। You spend your days also in GTU in the organizing committee in the Tech Fest. So what were those days like? And वही दिनों में कुछ आ गया था कि मुझे स्टार्टअप मेंटोरिंग करना है, या फिर ये स्टार्टअप मेंटोरिंग का कब ये थॉट आया? सो एक्चुअली चिन्मय दौर ऐसा था कि शायद मुझे जब बड़ौदा में मैंने स्टडी इंजीनियरिंग कर रहा था, शायद मुझे उतना आइडिया ही नहीं था कि स्टार्टअप किसको बोलते हैं। ओके। जब मैं अहमदाबाद इंजीनियरिंग के लिए गया, वहाँ पे इंटरेक्ट हुआ, वहाँ ACPC एक बिल्डिंग है जहाँ पे पूरा इनोवेशन का पूरा मुहिम चला। ओके। तब पता चला कि स्टार्टअप क्या होता है, किस चिड़िया का नाम होता है और कितना बड़ा मूवमेंट है। शायद बड़ौदा में रह के शायद ये लोगों को पता भी नहीं है, तो तब ये पता चला कहीं ना कहीं। और फिर GTU में मैं पढ़ रहा था, तो एक स्वाभाविक है कि हम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाते हैं, तो एज अ एसोसिएट, एज अ इंटर्न काम करने का मौका मिला। और जब मैं GTU में था तो एक टेक फेस्ट करके इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था। सो हर बार रोबोटिक्स, शायद वो 2 रोबोट हम भिड़ाते हैं या कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी होता है। दैट टाइम वी डिसाइडेड कि क्या हम स्टार्टअप्स के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो पहला ऐसा इवेंट था टेक फेस्ट 16, जहाँ पर हमने इस स्टार्टअप इवेंट्स को एक बहुत बड़ा ग्लैमराइज कर दिया था। ओके। जैसे आपने वडोदरा में VCCA का टेक फेयर देखा होता है, शायद वो पूरे 9 लाख की ग्राउंड में शायद अच्छे खासे डोम बनते हैं, 200-500 स्टॉल लगते हैं। वैसा ही कुछ हमने स्टार्टअप्स के लिए किया। तो उस टेक फेस्ट में यूनिवर्सिटी ने कुछ 100 स्टॉल्स का पूरा एक बड़ा सा डोम बनाया। तो वो डोम में एग्जीबिशन चल रहा है और सबके स्टॉल्स फ्री। ओके। पैरेलल हैकाथन चल रहा है, पैरेलल आइडियाथन चल रहा है, पूरा कल्चर खड़ा हुआ, पूरा कल्चर एक मोमेंटम बनाने का स्टार्ट हुआ। और उस पूरे जो इवेंट थी उसकी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली थी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शायद आज जो ये इतने कुछ हम कर पाते हैं। बहुत सारी इवेंट्स आप देख रहे होगे कि हम रेगुलर बेस पे करते हैं, तो वो लर्निंग शायद वहीं से है। ग्रेट। योर बॉन्ड विथ योर क्लोज पीपल is amazing. How are those emotions helping you in your work even today? How are you able to make your emotions into a positive thing? So मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब आपको लगे कि आप कहीं भी मेंटली डिप्रेस हो या कहीं ना कहीं सपोज पॉजिटिव भी हो, तो हर एक इमोशन को कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में यूज़ करना है। Okay. जैसे अपॉर्चुनिटी हमें लूज़ नहीं करनी है, वैसे ही मैं इमोशंस को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ। और जो मेरे फ्रेंड है, जैसे मुझे लगता है ना कि मैं डिप्रेस, शायद मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उस टाइम में लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आई नो कि मैं लिखूंगा तो शायद कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। तो मैं लिखता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत चार्जअप हूँ, तो मैं शायद उस टाइम पे ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं फेल होगा। तो जो चार्जअप होता है वो तो पॉजिटिव जो स्पिरिट है कहीं ना कहीं हेल्प करता है कुछ नई चीज़ें करने में। तो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। ओके। और एक्सपेरिमेंट किए भी है। लेकिन जो फ्रेंड्स हैं मेरे, जो कॉलेज के फ्रेंड है, स्कूल के फ्रेंड है, उनका जो अभी तक जो मेरे मुझ पे भरोसा है, या जब मैं डिप्रेस होता हूँ तो मुझे पॉजिटिविटी में लाने का जो काम है, शायद उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। सो ये पूरा क्रेडिट आज जो भी मैं हूँ वो मेरे अकेले का नहीं है, वो उतना ही मेरे फैमिली का है, उतने ही मेरे फ्रेंड्स का है। बिकॉज मैं बहुत बार शायद सबसे ज़्यादा डेली बेसिस पे मुझे ऐसी फीलिंग्स आती है कभी कभी कि यार निखिल ये तो वर्क नहीं कर रहा जी। तो वो जो डिप्रेशन की जो फीलिंग है उससे बचते रहना और हर बार पॉजिटिविटी ढूंढना, ये बहुत टफ टास्क है। और ये फ्रेंड्स और फैमिली मुझे हेल्प करते हैं, मेरे कलीग्स हेल्प करते हैं टू फाइंड द पॉजिटिविटी इन ईच एंड एवरी कंडीशन। दैट इज एन अमेजिंग क्वालिटी। लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद स्टार्टअप. What are some of the suggestions for getting knowledge or even the basic information about startup? Okay,
सो पहला तो जो मिसकंसेप्शन है उसको हटाने के लिए व्हाट डू आई सजेस्ट, गवर्नमेंट ने भी अच्छा सा एक पैकेज बना के रखा है, इट्स startupindia.com। उस पर जाओगे तो देयर इज़ अ कोर्स। Okay. तो अगर स्टार्टअप्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि स्टार्टअप किसको बोलते हैं, कितने टाइप के फंडिंग है, कैसे कैसे ये इकोसिस्टम वर्क करता है, किसी कंपनी को एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए कितना मेहनत लगता है, कौन से स्टेजेस होते हैं, ये सबके लिए देयर इज़ अ बेसिक कोर्स। आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर चले जाइएगा तो आपको ये पूरा कोर्स फ्री में एक्सेस करने को मिलेगा, और गवर्नमेंट उसका सर्टिफिकेट भी देगी आपको कि आपने ये कोर्स किया हुआ है। तो व्हाट डू आई बिलीव कि एक जेन्युइनिटी आपको चाहिए कोर्स कंटेंट में, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई डाउट है और ऐसा कुछ डिस्कस करना है कि पूरा कोर्स स्टडी करने का तो टाइम नहीं है, लेकिन मुझे बस पूछना है कि ये कुछ जो कर रहा हूँ वो स्टार्टअप है कि नहीं, सो बहुत सारे इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर सेंटर आपके अराउंड है। गुजरात इज़ अ हब ऑफ आई कैन से इंक्यूबेटर्स। सो यस, आप किसी भी इंक्यूबेटर में चले जा सकते हो, वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो वहाँ के इंक्यूबेशन मैनेजर को या टीम को, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। And how to know about these incubator centers? सो यस, देयर इज़ अ आई कैन से, आप गूगल का हेल्प ले सकते हो। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल startupgujarat.in, Fine. स्टार्टअप इंडिया। सो ये सारी वेबसाइट पे आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स की लिस्टिंग मिल जाएगी। Okay. सो अगर आप startupgujarat.in पे चले जाओगे तो पूरे गुजरात में कितने नोडल इंस्टीट्यूट है Fine. जहाँ पे आप ये 30 लाख रुपए का ग्रांट क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। Okay. कितने ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे आप SSIB पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देयर इज अनदर वेबसाइट को SSIBgujarat.in। तो Okay. यानी बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Fine. और अगर कहीं पे ना मिले, सो ऑफ कोर्स वडोदरा स्टार्टअप स्टूडियो इज देयर, आप Yes. हमें अप्रोच कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू राइट वडोदरा स्टार्टअप स्टूडियो, पारुल यूनिवर्सिटी, आपको हमसे कनेक्ट करने का रास्ता मिल जाएगा। और अगर कोई उधर फर्स्ट टाइम जा रहा है तो बताइएगा कि ये आंसर उनको talks@prinkit.in से मिला था। पाका From the ideation, if someone is doing a startup, then from the ideation, how much time, maybe in terms of months or years, that person can take to evaluate whether that startup will flourish or not? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसका आंसर शायद एक लाइन में नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ का ये देयर इज़ नॉट अ टॉनिक कि आज मैंने टॉनिक पी लिया और 6 महीने में ग्रो हो जाएगा या मेरा तरक्की हो जाएगा। ये ऐसा भी नहीं है कि ये सीड है और लेट्स से अगर आप पारिजात का फूल लगाओगे तो उसमें अलग टाइम लगेगा, और आप एक मैंगो ट्री लगाओगे तो उसका टाइम अलग जाएगा। Okay. वैसे ही स्टार्टअप में आप कौन सा आइडिया पे काम कर रहे हो, कौन सा सेक्टर पे काम कर रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैटर करता है उसके टाइमिंग पे। Okay. जैसे लेट से आप किसी फार्मा प्रोडक्ट पे काम करते हो, हाँ. तो वो ओवरनाइट नहीं हो सकता जैसा आईटी में हो सकता है। अगर आईटी में आज आपको आइडिया है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हाँ. और जिसका सॉल्यूशन कोई सास बेस्ड प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आप उसका प्रोडक्ट मार्केट में निकाल रहे हो, तो वो प्रोडक्ट क्या है कि आप ओवर नाइट इसको लॉन्च कर सकते हो। 1 महीने में 2 महीने में आप उसका एक प्रोटोटाइप बनाया, उसको बीटा टेस्ट किया, उसको अल्फा टेस्ट किया, कंपनीज के पास गए, आपके यूजर्स के पास गए और फिर उसको लॉन्च कर दिया। इतना इजी फार्मा प्रोडक्ट्स में नहीं है। Okay. वहाँ को स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, फॉर्मुलेशंस पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन बना है क्लिनिकल ट्रायल में जाएगा। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। ये सब करने के बाद उसका प्रोडक्शन कैसा सेटअप होगा, तो ये उसका फिर सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, और फिर आता है मार्केट। सो किसी भी अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आइडिएशन इज द फर्स्ट स्टेज, देन द प्रोटोटाइपिंग, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, वैलिडेशन, Okay. फिर आता है उसका मार्केट लॉन्च, फिर अगेन मार्केट लॉन्च से फिर ये साइकिल R&D वाला चलता ही रहता है एंड इट गोज ऑन। सो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो So the जाएगा। steps needs to be followed. सो स्टेप्स नीड टू बी फॉलो, और ये हर एक सेक्टोरियल बेस पे डिफरेंट ये परफॉर्म करता है। तो Okay. आईटी में ये शायद बहुत जल्दी हो सकता है, या आईटी बेस्ड सॉल्यूशन में भी मैं ये बोल रहा हूँ ना कि शायद आप फ्लिपकार्ट बनाना चाहते हो तो शायद बहुत टाइम लगेगा, अच्छा. लेकिन आपने बोला कि मुझे एक छोटा सा वेबसाइट बनाना जिससे ये बिटली अगर की बात करें तो बिटली की कोई भी लिंक का छोटा सा लिंक बना के दे दे, तो ये एल्गोरिथम बेस्ड सॉफ्टवेयर। Yes. तो ये कैसा है कि आपने 2 महीने में बना के दे दिया। सो इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन। Okay. सो कौन सा सेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तो इसका कोई वन लाइनर आंसर मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है।
Should we compare the startup culture in metro cities like Mumbai, Bangalore, compared to some of the cities like Vadodara or Rajkot, to name? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इसका आंसर भी बहुत एक एग्जांपल के साथ देना चाहूँगा. कोई भी बड़ी कंपनी होती है चिन्मय, सबसे ज़्यादा कॉस्ट क्या होता है? उसका प्रीमाइसिस, उसका इंफ्रा, उनके सैलरीज, यानी ये सारे ऑपरेशंस को करने के और अच्छा टैलेंट जी. जो इस पूरे ऑपरेशंस को चलाए. अब हुआ ये है कि बेंगलोर या पुणे या मुंबई, दिल्ली, ऐसे मेट्रोज के अंदर इंफ्रा कॉस्टली है, वहाँ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं, इसीलिए स्टार्टअप्स वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. हाँ. अच्छे टैलेंट्स को हायर करना इजी हो जाता है, तो उनको अच्छे टैलेंट्स भी मिल जाते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है, तो इसीलिए वो इजीली ग्रो करते हैं. ओके. अब हुआ ये है कि पिछले 1-2 साल में ये सिनेरियो धीरे धीरे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ की ओर डाइवर्ट होना स्टार्ट हो चुका है. अगर बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में जो कॉस्ट पे आपको शायद पूरा बिल्डिंग मिल जाएगा, हाँ. उसी कॉस्ट में आप दिल्ली में शायद एक फ्लैट आप रेंट पे ले सकते हो, Yes. या 2 फ्लैट रेंट पे ले सकते हो. तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम है, यहाँ पे शायद इतना सैलरी भी पे नहीं करना पड़ता. हाँ. आपको पर रिसोर्स आपको जो सैलरी बैंगलोर में पे करना पड़ता है, शायद उतना एक्सपेंसिव सैलरी आपको बड़ौदा में नहीं पे करना पड़ता है. Okay. तो इसीलिए Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के और बड़ी कंपनीज भी रुक कर रही है और अच्छे स्टार्टअप्स उभर के भी निकल रहे हैं, बिकॉज उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बहुत कम यहाँ पे पड़ता है. तो जब कोई इन्वेस्ट करता है और वो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से बिलोंग करता है ना, उनको स्केल अप करना और एक्सपेरिमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है. Yes. Which industry is good and will expand in future in India to start a startup? सो अगेन इसको उसी डायरेक्शन में मैं ले जाऊँगा. सो अगेन कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद इंडस्ट्री, यानी कोविड के बाद तो द सिनेरियो इज कम्प्लीटली चेंज. शायद जूम कॉल की बात करें, जूम कॉल बहुत पहले से है, हाँ. लेकिन जैसे ही कोविड आया शायद वो जितना Yes. जल्दी आगे बढ़ा है शायद नहीं बढ़ पाता. अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द बायजूस एंड द वाइटेड जूनियर, शायद अगर ये हम लॉकडाउन ना हुआ होता तो जिस स्केल पे वो आगे बढ़ रहे शायद नहीं होते. सो ऑफकोर्स एक्चुअल सिचुएशंस के बेस पे सेक्टर्स चेंज होते रहेंगे. It affects. बट व्हाट डू आई बिलीव कि हेल्थ टेक, डिफेंस जो गवर्नमेंट की जो अभी करंट पॉलिसी है, डिफेंस कुड बी वन ऑफ द सेक्टर. Okay. डिफेंस है, हेल्थ टेक है, एडटेक में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजीज Yes. में. तो ये सारे सेक्टर्स है जहाँ कहीं ना कहीं आगे आपको बहुत अच्छे स्टार्टअप्स भी दिखेंगे और इन्वेस्टमेंट के जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है वो अच्छे दिखेंगे आपको. One of the person from edtech startups from our city Vadodara has asked one question. What will be one suggestion for a early stage startup, particularly in edtech industry? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडटेक इंडस्ट्रीज, क्या हुआ कि जैसे कोविड स्टार्ट हुआ, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखनी स्टार्ट हुई. शायद उससे पहले एडटेक स्टार्टअप उतने भी नहीं थे. कोविड के बाद एक मैं बोल सकता हूँ कि मधुमक्खी का जैसे जाला होता है जी. वैसे ही एडटेक स्टार्टअप्स बूम करने लगे. अब एडटेक में क्या है कि अगर आपके पास यूज़र बेस नहीं है, अगर आप राइट कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो और आपके पास राइट स्ट्रेटजी नहीं है, तो शायद मेरे हिसाब से फेल होने के चांसेस ज़्यादा है. होता क्या है कि जो प्रॉब्लम शायद लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बायजूस जो कर रहा है ना, मैं वैसा ही करने का ट्राई कर रहा हूँ, या वाइटेड जो कर रहा है ना वैसा ही कुछ करने का ट्राई कर रहा हूँ. तो शायद आपके फेल होने के चांसेस 99.9% है, बिकॉज बायजूस ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुका है. ऑलरेडी उनके पास उतना फंड भी है उसको स्ट्रेटेजी मार्केट करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए. लेकिन आप जैसे नई कंपनीज के पास ना उतना फंड है टू डेवलप द प्रोडक्ट, ना उतना रिसोर्सेज है. तो होता क्या है कि आप चालू करते हो, 1-2 साल तक पैसा भी पंप करते हो और फिर सडनली डाउनफॉल आ जाता है. सो दिस इज द माई जेन्युइन सजेशन इज कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ यूनिक कर रहे हो बड़े प्लेयर्स से, तभी आप उसमें रिसोर्सेस और टाइम लगाइए. ओके. नहीं तो क्या होगा, आप 1-2 फीचर नए लाने के चक्कर में अगर आप ये करोगे, बड़े प्लेयर्स को पता चलेगा कि आप 1-2 अच्छे फीचर लेके आए हो, उनको ये इम्प्लीमेंट करने में शायद 1 महीना भी नहीं लगेगा और आपका जो यूएसपी था वो चला गया. सो व्हाट डू आई प्रीफर, इफ इट इज़ अ टेंजिबल प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले आईपीआर ले लो, उसका पेटेंट राइट, आईपी राइट जो भी है वो ले लो. और फिर आप ट्राई कीजिए कि क्या उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, क्या उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, एंट्री बैरियर लगा सकते हो क्या.
इफ़ अगर आप किसी आइडिया आपके आइडिया पे एंट्री बैरियर लगाने में सक्सेसफुल हो, हाँ, तभी आप उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में ओके. ला सकते हो. What is basic difference between startup and business? हाँ, ये Or should we say business as a business or business as traditional business? चलिए, ये यानी ये शायद इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं फिर से ये शायद बात करने में सफल हो पाऊँगा. लोग हर बार अभी कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अभी पहले ही हमने डिस्कस किया कि कुछ नया चाय का लारी चालू किया, मैंने स्टार्टअप चालू किया, या मैंने एक अच्छा सा वेडिंग फोटोग्राफी चालू किया तो मैंने स्टार्टअप चालू किया. इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दिस. Okay. सो जब आप कोई पहले से ही एक्सपेरिमेंट की हुई चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे एयरटेल पहले से है और मैंने आइडिया बनाया, हाँ. तो उसको मैं स्टार्टअप नहीं बोल सकता, बिकॉज ऑलरेडी एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है. हाँ. कि ये चीज़ ऐसे होती है तो आपने वैसे ही आप किसी और वेंडर से लेके आप काम कर रहे हो. तो जो चीज़ें पहले से ही होती है या जिस चीज़ में रिस्क कम होता है Okay. इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, हाँ. तो उसको आप बिजनेस बोल सकते हैं. जैसे शायद ओयो रूम्स के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है जी. जब ये पहली बार आया था. हाँ. या किसी होटल खोलने में अगर मेरे पास 50 लाख पड़े हैं और मैं ओयो रूम पे पैसा लगाऊँ एक सॉफ्टवेयर बनाने में, हाँ. या मेरा खुद का होटल खड़ा करूँ किसी हिल स्टेशन पे, तो शायद प्रॉफिटेबल कौन सा लगता. जब ओयो नहीं आया था तब. हाँ, होटल. तो होटल क्यों आपने सोचा? बिकॉज आपको पता है कि कुछ भी होगा कि नहीं होगा, ये हिल स्टेशन पे जगह है, मेरा होटल है, लोग आएंगे और आएंगे ही, तो मैं पैसा इसमें लगाऊँ. हाँ. तो जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है जहाँ से पैसा जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है Okay. या आने के वो बिजनेस मॉडल प्रूवन है, उस चीज़ को आप बोल सकते हो बिजनेस. और जहाँ पे रिस्क है, जो पहली बार आप ट्राई कर रहे हो, जो मैं बोलता गुजराती में बोलता हूँ जुगाड़ अखतरो. हाँ. सो जब आप पहली बार कुछ जुगाड़ करते हो, पहली बार कुछ नया करते हो जिसका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता भी है या नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, आप सारे अटेम्प्ट पॉजिटिव के लिए ही करते हो, लेकिन वो कभी पहले हुआ नहीं है, शायद आपके लिए उसका केस स्टडीज अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उसको स्टार्टअप बोलते हैं. स्टार्टअप में रिस्क ज़्यादा होता है. Okay. और इसीलिए इन्वेस्टर्स आपके रिस्क वाली कंपनी में पैसा लगाने के लिए अच्छा खासा इक्विटी चार्ज करते हैं. तो रिस्क लगाना चाहिए. हाँ, रिस्क है तो रिस्क है. वाह. इश्क से कुछ याद आ रहा है कि निखिल सुथार हैज ऑलवेज रिमेन्ड बिजी. ही फॉलोज अ टाइट शेड्यूल. हाउ वाज ही एबल टू मैनेज टाइम टू फाइंड हिज राइट लाइफ पार्टनर? सो हाँ, ये भी बहुत बड़ा चुनौती था मेरे लिए. एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन आस्क्ड बाय वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड्स. सो चिन्मय, ये बहुत बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम था मेरी फैमिली के लिए एक्चुअली. कि इसको कैसे ले जाए फैमिली फंक्शन में, बिकॉज मैं शायद उतना सोशल नहीं हूँ कम्युनिटी के अंदर मेरे. सो होता क्या है कि मैं स्टार्टअप इवेंट से ही इतना फ्री नहीं होता हूँ कि मैं किसी का वेडिंग अटेंड करने के लिए जाऊँ. तो लकीली मुझे बाय फोर्स एक दिन मुझे ले गए और वहाँ पे मिलवाया गया बाकायदा कि आप आओ, और मैं वहाँ गया और मिलाया, और एंड देन इट हैपेंस. सो ऑफ कोर्स टफ था, लेकिन उस टाइम पे भी मन थोड़ा रहता होगा कि वो टाइम को थोड़ा स्टार्टअप्स में ज़्यादा नहीं. होता क्या है कि फॉर पीपल लाइक अस स्टार्टअप इज नाउ जस्ट लाइक अ सिंड्रोम. सो व्हेन वी आर टॉकिंग एनीथिंग ना, आपके माइंड में वही चलता है कि आप इसको स्टार्टअप के लिए क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप के बारे में क्या कर सकते हैं. तो हाँ, ये एक्चुअली ये आपको जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन दिया है, ये स्कूप दिया है, यस ही इज़ राइट. ये स्टार्टअप हर बार चलता रहता है मेरे माइंड में, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम मैं उसमें से निकालूँ फॉर माई फैमिली. अच्छा, और एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड, तो जब पहली मुलाकात हुई तब क्या स्टार्टअप्स की बात ज़्यादा हो रही थी? हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो मैं करता हूँ ना, हाँ. वो समझाने में ज़्यादा टाइम जाता है. अच्छा. अगर आप कोई बोलो कि ये क्या करता है, तो सीधा ये जॉब करता है, हाँ. या ये बिजनेस करता हाँ. है. मेरे डायरेक्शन में क्या कि आप ओके क्या काम करते हो, तो ओके स्टार्टअप वो क्या होता है, सो वो कैसे होता है, व्हाट रोल यू परफॉर्म. तो वो समझाने में ही बहुत अच्छा खासा टाइम. सो आई कैन से 90% डिस्कशन वाज जस्ट अबाउट द स्टार्टअप ओनली. ओके. Nikhil ji, to all the students who are currently studying in universities, they might think that they want to do a startup,
and at the same time that thought can come that okay, I want to leave my education in between and do a startup. So is this right thinking? एक्चुअली क्या होता है कि अगर एक बिल गेट्स सक्सेसफुल हो गया ना, या एक मार्क जुगरबर्ग सक्सेसफुल हो गया ना, तो लोगों ने सोचना चालू कर दिया। हमारी यंग पीढ़ी का प्रॉब्लम क्या है कि वो जल्दी ही किसी चीज़ को आप आइडियल बना देते हो, Okay. और जब मेहनत कम करना होता है ना, हाँ. तो आप उस चीज़ को आपके लिए आसान बना देते हो। जैसे अगर मुझे कम मेहनत करना है पढ़ाई में, मैं क्या बोलूँगा, मार्क जुगरबर्ग ने तो ड्रॉप किया था ना, मैं भी ड्रॉप करूँगा, मैं खुद का स्टार्टअप करेगा। Yes. इसी चक्कर में बहुत सारे लोग ड्रॉप करते थे। हाँ. सो ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ड्रॉप आउट करना Okay. ज़रूरी है। आपका एजुकेशन वो उतना ही ज़रूरत है जितना आपका बिजनेस। और ड्रॉप जब कब होता है पता है, कि आप किसी एक सब्जेक्ट में आप वीक हो। हाँ. जैसे मैं खुद की बात बताऊँ, मैं उतना मैथ्स में साउंड नहीं हूँ। मुझे लाप्लास या ये फूरियर या ये इंटीग्रेशन डेरिवेशन शायद मैं पहले से ही मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग इंजीनियर्स अपनी डिग्री ही कंप्लीट नहीं कर पाते, Yes. और उसी चक्कर में वो फिर क्या बोलते हैं कि हाँ ड्रॉप ले लूँगा ना, ऐसे भी मार्क जुकरबर्ग ने ड्रॉप लिया था। तो गवर्नमेंट उसके लिए भी कुछ ना कुछ रोल परफॉर्म अच्छा. कर रही है। और अभी क्या है कि हम देख पाएंगे गवर्नमेंट बहुत जल्दी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है Okay. कि आप पढ़ाई के साथ साथ कंपनी चला सको। देयर इज अ कोर्स कॉल्ड MBA IEV, MBA IEV, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर क्रिएशन। Okay. सो ये एक AICTE ने एक कोर्स लॉन्च किया था। अभी एक कोर्स का पर्पस क्या था कि मैंने ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन चिन्मयी को ऐसा लगता है कि अब मुझे पढ़ना तो है, हाँ. लेकिन मुझे खुद का बिजनेस भी चालू करना है। अब मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। Yes. लेट्स से अभी मुझे स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहा हूँ, अब आगे पढ़ना भी है, मास्टर स्टडी भी करना है, लेकिन ना मेरे पास उतना टाइम है, ना उतना कमिटमेंट करने का उतना पैशन है। हाँ. ये कोर्स के थ्रू क्या होता है कि 2 साल तक आपको आपके स्टार्टअप पे काम करना है, आपको आपके स्टार्टअप पे काम करना है, Okay. और आपके स्टार्टअप पे आपने कैसा काम किया ना, उसके बेस पे आपको डिग्री मिलती है। Okay. This is. सो ये पूरे इंडिया में AICTE अप्रूव्ड MBA कोर्स चलता है। और ये कितने को पता होगा? जैसे मैंने पहले बताया हाँ. कि आप तक इंफॉर्मेशन ना पहुंचना, या आप उस इंफॉर्मेशन को नहीं ढूंढ पाते, Right. ये सबसे बड़ा शायद एक ड्रॉबैक है, ये सबसे बड़ा इशू है कि लोगों तक ये बातें नहीं जा पाती। शायद 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए में आप पूरा MBA डिग्री मिल जाता है, और ये सिर्फ डिग्री नहीं मिलता चिन्मय। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस 2 साल के पीरियड में आपको जो बिजनेस करने के लिए ग्रांट चाहिए ना, वो भी वो लोग देते हैं। उस पर एंट्री करने के लिए मेरिट नहीं लगता, Okay. आपका स्टार्टअप आइडिया लगता है। तो उस पर वो डिस्कस नहीं होता कि आपके JEE में कितने स्कोर थे, हाँ. या आपके इंजीनियरिंग में कितना स्कोर था। उसमें आपका आइडिया क्या है, आपकी टीम क्या है, उसके बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाता है इन द MBA कोर्स एंड द PGDM कोर्स। सो सिनेरियो इज नाउ गोइंग टू चेंज, और बहुत जल्दी अच्छे अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं, अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं इस डायरेक्शन में। जी. आज जो यंग एज वाले उनके पेरेंट्स को जब बताए कि मुझे ये काम करना है, मुझे जॉब नहीं करना, स्टार्टअप करना है, बट पेरेंट्स माइट नॉट बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड बिकॉज दे माइट नॉट बी अराउंड दिस स्टार्टअप वर्ल्ड. Right. So what can be the parents' approach to understand their children better, that okay, what is startup, how will he or she earn in future? सो एक्चुअली ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जब एक्चुअली हम जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो होता क्या है कि हमारा फैमिली का एक बिलीव होता है कि ये जॉब करेगा, अच्छा कमाएगा, सेट हो जाएगा। हाँ. तो एक कल्चर बिल्ट हो चुका है कि ये जॉब करे तो अच्छा है। हाँ. लेकिन अब जब पेरेंट्स समझने लगे हैं, जो एजुकेशन रेशियो बढ़ा है, तो अब बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट को अच्छा खेलने के लिए प्लेग्राउंड दे देते कि बेटा तुझे जो करना है कर, अच्छा सिंगिंग कर रहा है तो सिंगिंग कर, Okay. तो अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस कर। तो ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स प्रोएक्टिवली स्टार्टअप्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसी डायरेक्शन में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं एज अ इकोसिस्टम अनेबलर्स? हम अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू वैसे पेरेंट्स को सम्मानित करते हैं। जैसे अगर आपके लेट्स से नेबर में हाँ. कोई मनीष करके लड़का है, और उसके पापा को सम्मानित किया जाता है क्योंकि मनीष स्टार्टअप करता है। अच्छा. तो क्या आपके पापा को ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चे को स्टार्टअप करना चाहिए? हाँ. ये साइकोलॉजी है। Yes. तो इसी साइकोलॉजी पे वर्कआउट करके अभी हम जितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बड़ौदा में काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारा मीडिया भी प्रोएक्टिवली सपोर्ट कर Okay. रहा है, उनके स्टोरीज को कवर करके। अब होता क्या है कि अगर चिन्मय का स्टोरी मीडिया में पब्लिश होता है ना, तो चिन्मय के पापा पूरी कम्युनिटी में जाके, सोसाइटी में जाके बताएंगे कि मेरे बेटा ये काम कर रहा है। हाँ.
और तब चिन्मय का ऑटोमेटिकली वो कलर ऊपर हो जाएगा कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग Yes. जो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अच्छा लग रहा है। Yes. और पेरेंट्स को भी लगेगा कि मेरा बच्चा जो कर रहा था ना, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, हाँ. लेकिन किसी और को समझ में आ रहा है और उसने उसको कहीं ना कहीं सम्मानित किया है। वैसे ही जो स्टार्टअप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को हम अवार्ड देते हैं, बच्चे को नहीं। पेरेंट्स को। जैसे चिन्मय का एक कंपनी है, चिन्मय ने एक प्रॉब्लम पे काम किया, अच्छा सॉल्यूशन डेवलप किया और सॉल्यूशन मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स ले रहा है, तो चिन्मय को तो अवार्ड मिलता ही है, वो मिलता ही रहता है। लेकिन हम उस पेरेंट्स को भी सम्मानित करते हैं जितना जिस पेरेंट्स ने पेशेंसली उतना टाइम उसको एक्सपेरिमेंट करने दिया, Yes. शायद उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको प्रोएक्टिवली सपोर्ट किया। Okay. हम ना सिर्फ पेरेंट्स को, उनके लाइफ पार्टनर्स को भी सम्मानित करना स्टार्ट कर दिया। या अगर आपके पार्टनर ने, बिकॉज आप जब स्टार्टअप करते हो ना तो वो फिक्स टाइम नहीं होता है कि सुबह 9 बजे आए जॉब पे और 6 बजे चले गए। स्टार्टअप यानी आपको राउंड द क्लॉक काम करना है, तो शायद आप 11 बजे भी आप शायद फ़ोन नहीं उठा पाते कभी। तो हम उस पेरेंट्स को भी सम्मानित कर रहे हैं। हम हर एक वो आदमी जो स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, उनके लाइफ्स के अंदर हम अच्छा सा इकोसिस्टम बनाने की पूरी बेहतर कोशिश कर रहे हैं। This is a wonderful initiative, and definitely parents will keep confidence in their children because of such action taken by your team. नहीं एक्चुअली चिन्मय, बहुत खुशी की बात यह है कि अभी तक जब हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, शायद हमें लगता था कि हाँ है गिने चुने पेरेंट्स। आज हमारे पास इतने सारे पेरेंट्स और इतने सारे ऐसे लोगों का पूरा पुल बन चुका है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इस बार बस इतने लोगों का करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम उतने लोगों को बढ़ाने का ट्राई करेंगे। जैसे आज जब बात कर रहा हूँ, शायद थोड़े दिन पहले ही हमने एक डेमो डे किया है। उस डेमो डे में हमने एक इन-लॉज को सम्मानित किया है कि उनके डॉटर इन लॉ को सपोर्ट करने के लिए। Great. तो डॉटर इन लॉ का स्टार्टअप्स में फंड किया, सपोर्ट किया इन-लॉज ने, और उस स्टार्टअप्स को उतने तक मेंटर भी किया। तो यानी ये बहुत बड़ा चेंज सोशल हमारे स्ट्रक्चर में आ रहा है, और ये स्टार्टअप शायद वडोदरा के अभी कण कण में आने वाला है, स्टार्टअप का स्पिरिट। In short, what can be the different stages when it comes to funding? सो लेट्स से किसी भी स्टार्टअप का कोई भी अगर बात करें कि फंडिंग का, तो फंडिंग कितना टाइप का हो सकता है, ये बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है। Okay. और डिबेटेबल भी ना बोलता हुआ मैं उसको थोड़ा और क्लेरिफाई कर दूँ, डिटेल सब्जेक्ट है। Okay. ये MBA फाइनेंस का एक बाय द वे एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसको मैं छोटा सा उसको मैं वे में बताना चाहूँगा कि जब हम स्टार्टअप के अंदर जो टर्मिनोलॉजी काम करती है, वो है एक सीड फंड, बूटस्ट्रैप। अगर आप खुद के ही किसी बिजनेस से शुरू करते हो, जैसे मुझे IT स्टार्टअप पे काम करना है, लेकिन साइड पे मैं 4-5 प्रोजेक्ट फ्रीलांस के तौर पे लेके वहाँ से पैसा अर्न करता हूँ और मेरे प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप। जी. अगर आप किसी चाचा, मामा, भाई, मम्मी, पापा किसी का पैसा लेके, फ्रेंड का पैसा लेके कंपनी चालू करते हो, या किसी इन्वेस्टर का इनिशियल स्टेज पे कंपनी पैसा लेके कंपनी चालू करते हो, उसको बोलते हैं सीड स्टेज। Okay. देन एंजल राउंड्स होते हैं, देन सीरीज राउंड होते हैं, सीरीज A, सीरीज B। सो यानी बहुत सारे साइकिल्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बूटस्ट्रैप, सीड फंड, एंजल फंडिंग्स, सीरीज फंडिंग। सो सीरीज फंडिंग वो फाइनल हर किसी का ड्रीम होता है, हर स्टार्टअप का ड्रीम होता है कि मैं सीरीज फंडिंग तक पहुंचूं। Okay. One last question, and after that we will have a one quick, I can say, game sort of round. Nikhil Suthar gives lot of good mentoring and coaching to startup enthusiasts. Was Nikhil Suthar able to start any particular startup, or don't you yourself get enthusiastic to run your own startup? So actually yes Chinmay, you mentioned correctly right कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और मैंने किया कि नहीं। सो ऑफकोर्स मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं करनी है, जो मिस्टेक मैंने की वो नहीं करनी है। और ये क्या है कि किसी ना किसी को, मैं नहीं तो किसी कोई और आएगा और उसको ये रोल प्ले करना है। तो आई एम जस्ट प्लेइंग दिस रोल फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब लगेगा कि एक पूरा पुल बन चुका है, बहुत सारे लोग इकोसिस्टम में आ चुके हैं, तो शायद निखिल सुधार का तब ज़रूरत शायद उतना नहीं रहेगा। और ऑफ कोर्स मे बी रहेगी आपकी ज़रूरत, लेकिन पक्का फ्यूचर में शायद मैं कुछ खुद का बहुत जल्दी शुरू करूँ। Amazing. We have got lot of insights, be it in terms of startup or getting inspiration from
personal journey of Nikhil Sudhar. We will have one quick round that is named as a chop chop round. और जी, ना एक्चुअली मैं डरा हुआ हूँ कि शायद इस राउंड में आएगा क्या. तो क्या कुछ बिस्किट या पानी? नो एक्चुअली ये चॉप चॉप राउंड से पहले मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ. ऑल द बेस्ट. या और टारगेट, आप शायद काफ़ी स्टार्टअप लोगों को टारगेट्स देते होंगे, तो अभी आपका टारगेट ऐसा है कि ये सभी सवालों के जवाब आपको 1 मिनट में दे देने हैं, सभी Done. सवालों का. डन. आप जब रेडी कहोगे तब. नहीं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके सारे आंसर्स का जवाब मैं तुरंत दे दूँ. ओके ग्रेट. सो कैन वी स्टार्ट? यस ऑफ कोर्स. 3 words describing startup. प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड राइट मेंटरिंग. Okay. Answers for these questions can be in English, Hindi, Gujarati, any language. Next question. 2 strengths of Nikhil Sudhar. The connections and the learnings. 2 weakness of Nikhil Sudhar. The emotional part, and I can say sometimes actually emotional part Okay, only. fine. We will keep that. Yeah. Always mentoring or invest in a startup. So yes, currently I am just mentoring, but I will invest. in Time future. for your loved ones, or that time should be utilized in mentoring a startup. mentoring the startup. Advice for early stage startups in just 1 line. स्टार्टअप को गर्लफ्रेंड मत बनाओ. स्टार्टअप पे काम करो, अगर फेल हो जाता है तो दूसरे पे चालू कर दो. क्या बात है. Advice on any 2 books which startup enthusiast must read. तो अभी जो मुझे अच्छी बुक लग रही है, जो शायद सबको पढ़नी चाहिए, वो है 0 to 1. शायद वो जो बुक आपको लर्निंग देगी वो इनिशियल स्टेज पे सभी स्टार्टअप्स के लिए Okay. ज़रूरी होगी. Best 3 startups in Gujarat. Either you would have mentored them or you just like those startups. सो एक टॉर्चिट करके है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अहमदाबाद में स्टार्टअप है. एंड एक अगर मैं बड़ौदा के भी 1-2 स्टार्टअप्स के एग्जांपल शायद मुझे अच्छा लगेगा. टेको किड्स है जिसको Okay. भी मैं करंटली Okay. मेंटर कर रहा हूँ. और उसके अलावा जो स्टार्टअप का नाम मैं देना चाहूँगा वो है यूनिक भारत लाइफस्टाइल, जो अभी बहुत जल्दी उसकी प्रोडक्ट्स मार्केट में आएगी. Great. 1 sentence for those people who think startup as a craze. जो दिखता है वो होता नहीं है, वो मेहनत उतना ही लगता है. Any benefit? Describe in 1 word that okay, corporate job is also beneficial. हर चीज़ का अपना अपना मज़ा है. Lastly, कुछ पंक्तियाँ जो आपने लिखी हो वो हो जाए या गाना हो जाए. सो शायद गाना तो सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ दुष्यंत कुमार की लाइन मुझे ये हर बार इंस्पायर करती है Okay. कि एक्चुअली ये हर बार ये लाइन कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी फील करने का काम करती है, और जिस मोमेंट को हम सब आगे बढ़ाए हुआ है. और शायद आज के टॉक के बाद ये और भी सार्थक होगी कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए. और ये जो आग है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ये जो आग है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, शायद वो हमें पकड़ के रखनी पड़ेगी. शायद उस आग को और हवा देने की ज़रूरत लग रही है. क्या बात है. इसी के साथ हम आशा रखते हैं कि निखिल सुधार का काम, उनके विचार चलते आए हैं और चल रहे हैं, लेकिन आगे भी ना सिर्फ वडोदरा और गुजरात लेकिन पूरे इंडिया में फैलते रहे. और वी एज बरोडियंस should be proud that we belong to a city जिसमें स्टार्टअप कल्चर का महत्व ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है. टॉक के इन बिटवीन आपने कुछ पारिजातक के फूल के रिलेटेड बात किया था, उसके रिलेटेड एज अ स्मॉल टोकन ऑफ गिफ्ट, something related to that you will find in this small token gift. Thank you. Please very much. accept this Thank you very as much. part of Prinkit.in. Thank you very much.